Hello students, how are you all? I think you all are very good. Okay, our today's topic is dice test. Dice test. What are dice? Dice are cubical or cuboidal shape objects containing numbers, figures, symbols embedded on their surfaces. It means this is a dice, and on their surfaces it can be numbers, it can be dots, one dot, two dots, three dots, or these can replace by symbols. These can be like this, the mathematical symbols, or these can be replaced by the non-verbal figures like this. If this is the surface, it can be like this. It is the surface. This can be like this. So these are the dice by which these are replaced by the numbers, the dots, the mathematical symbols, or the non-verbal figures. In the dice are used for gambling or non-gambling purposes. Okay, like craps, ludo, casino, anything. Okay, the dice are of two types. The first one is cube dice and cuboid dice. These are the cube dice. This one is also cube dice. This one is also the cube dice. If we are talking about the cuboid dice, that type, the cuboid dice are of like this. In Mahabharata, the cuboid dice were used by Sakuni. Okay, in this chapter we will discuss about the cube dice. The cube dice is of two types. The first one is the standard dice and the second one is the simple, ordinary, normal or non-standard dice. These all are of the name of the simple dice. What is the standard dice? Standard dice क्या है? This is a dice and this is having 6 surfaces, 1, 2, 3 and the 4, 5 and 6. These are the 6 surfaces. So what is standard dice? Standard dice is this in which the dice which is having the sum of 7 on the opposite surfaces. Opposite surfaces, it means if here is 3, it means the opposite surface is this. Here will be 4. The opposite surface of 2, there will be 5. The opposite surface of 1, there will be 6. So that is the standard dice. If it is given that this is a standard dice, this is a standard dice, that time what will be opposite of 2? So it means we will say that the opposite of 2 is 5, the opposite of 4 is 6, and it is asked opposite of 1, that time we can say that there will be 6. So that is the standard dice. Now we will talk about the non-standard dice. Non-standard dice, it means if this is the standard dice, that time what will be the non-standard, in which the properties of standard dice are not followed. It means if the sum of the opposite surface is not 7, that time it is called non-standard dice. If the sum of opposite surface is not 7, that time what will happen? Here let's see. यहाँ पे ये जो डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस क्यों है? क्योंकि इसके सभी अपोजिट सरफेसेस का जो सम है वो कितना है? 7. यहाँ पे ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिट सरफेसेस हैं उनका जो सम है वो क्या नहीं है? 7 नहीं है. और अगर अपोजिट सरफेसेस का सम 7 नहीं है तो जो सम 7 होगा वो कहाँ पे होगा? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो इट मीन्स ये स्टैंडर्ड डाइस कब होगी? जब यहाँ इसका अपोजिट जो 6 होगा वो कहाँ पे होना चाहिए? इसके अपोजिट में, यहाँ इस सरफेस के ऊपर होना चाहिए. और अगर ये जो अपोजिट सरफेस है वहाँ पे अगर 6 ना हो करके वो अगर 6 कहीं और हो, कहीं और, इट मीन्स अगर इस सरफेस को हटा करके बाकी कोई भी सरफेस है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, या फिर बॉटम पे लिखता हूँ, कहीं पे भी अगर मैं 6 लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सरफेस, जो नंबर अपोजिट सरफेस पे होना चाहिए था वो कहाँ पे आ गया? एडजेसेंट सरफेस के ऊपर आ गया. एडजेसेंट सरफेस के ऊपर आ गया तो इसका मतलब यहाँ इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? दैट डाइस विच हैज़ द सम ऑफ 7 ऑन द एनी ऑफ
एडजेसेंट ऑन एनी ऑफ द पेयर ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस, किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस के ऊपर अगर सम 6 + 1 7 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, या 2 + 5 7 हो गया, इट मीन्स दैट इज़ द नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इन द स्टैंडर्ड डाइस देयर इज़ द सम ऑफ 7 ऑन ऑल द अपोजिट पेयर्स, एंड हियर कोई भी एक अपोजिट सरफेस एडजेसेंट सरफेस का सम अगर 7 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। अब अगर ये किसी भी एक एडजेसेंट सरफेस का सम, किसी भी एक एडजेसेंट पेयर का सम 7 हो रहा है, तो यहाँ इसके साथ साथ दो एडजेसेंट पेयर का सम 7 हो रहा है। कैसे, यहाँ पे अगर मान लो 2 था, तो इस 2 के अपोजिट में 5 यहाँ पे था, यहाँ पे 6 आ गया, तो इसका जो 5 होगा वो 5 कहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या फिर बॉटम पे होगा। अगर मान लो 5 आता है यहाँ पे, तो अभी कितने एडजेसेंट पेयर का सम 7 है, 2 एडजेसेंट पेयर का सम, एक तो इसका और एक इसका। तो दिस इज़ द नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इन द नॉन स्टैंडर्ड डाइस देयर कैन बी वन अपोजिट पेयर, द सम ऑफ वन अपोजिट पेयर इज 6। एक अपोजिट पेयर का जो सम है वो 7 हो सकता है, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर विल बी, बिकॉज वन मोर non-standard dice is there, that is 1, that is 6, that is 2, 5, 4, 3. In this type, no one adjacent pair, no one opposite pair is having the sum of 7. किसी भी अपोजिट पेयर का सम क्या नहीं है, 7 नहीं है। यहाँ पे हर एक एडजेसेंट पेयर का जो सम है वो क्या है, 7 है। इसके अंदर कि एक पेयर का जो, एक अपोजिट पेयर का सम क्या है, 7 है। ये दोनों ही एडजेसेंट, दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं, बिकॉज कोई भी डाइस इसमें से क्या नहीं कर रही है, स्टैंडर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं कर रही है। और नॉन स्टैंडर्ड कौन सी होती है, नॉन स्टैंडर्ड वही है जो स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी को क्या ना करे, फॉलो ना करे, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। यहाँ पे आपके एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट बनता है, और वो इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या होता है कि इन द डाइस वन सरफेस इज हैविंग वन अपोजिट सरफेस, एक सरफेस का केवल एक ही अपोजिट सरफेस होता है, वन अपोजिट सरफेस, और एक सरफेस के 4 एडजेसेंट सरफेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब हम बात कर रहे थे 6 को पुट करने की, तो वो 6 के पुट करने के लिए, एडजेसेंट में पुट करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन थे। यहाँ पे पुट कर सकते थे, यहाँ पे पुट कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, और बॉटम पे कर सकते थे। तो ये क्या हो गया कि एक ही सरफेस का एक अपोजिट सरफेस होता है, और 4 क्या होते हैं, 4 एडजेसेंट सरफेस होते हैं। ये एक की पॉइंट है जो आपको क्या करेगी, कंप्लीट डाइस के टॉपिक में आपको ये चीज़ क्या आएगी, काम आएगी। तो इसको हमें क्या करना है, ऑलवेज माइंड में रखना है। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्डाइज होगी, और ये क्या होगी, नॉन स्टैंडर्डाइज हो गई। अब डाइस यहाँ तक था केवल और केवल आपके जो डाइस है उस डाइस को समझने के लिए। अब इस डाइस के अंदर है हम बात करते हैं साइड की, कि साइड क्या चीज़ है, साइड क्या चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, तो अब इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये है एक डाइस, जिसके ऊपर क्या लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, 1, 2 एंड 3। दीज आर द नंबर्स ऑन द सरफेसेज ऑफ ए डाइस। अब ये क्या हो गई, एक डाइस हो गई। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि ये क्या है, ये है सिर्फ एक साइड। डाइस कौन सी होगी, डाइस वो चीज़ है जब जो आपका ये कंप्लीट जो एक सॉलिड फॉर्म में होगी, ये आपकी एक डाइस है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर मैं 1, 2, 3 सरफेसेस को अगर मैं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक साइड है डाइस की। अगर ये एक साइड डाइस की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डाइस के अंदर बहुत सारी साइड हो सकती हैं। बहुत सारी साइड होने का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे इसी डाइस को अगर मैं रोटेट कर देता हूँ, पलट देता हूँ, तो रोटेट करने के बाद मेरे को क्या दिखाई देगा कि जो ये 3 था, मैं इस 3 को अगर यहाँ पे ले आता हूँ, ये 2 मैं यहाँ पे ऊपर था ही, मैंने इसको क्या किया था, रोटेट किया था। और रोटेट किस डायरेक्शन के अंदर किया था, इसको मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको मैंने रोटेट किया। रोटेट करने के बाद यहाँ पे क्या था, वो 6 था, जो कि यहाँ पे 6 था।
तो अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, रोटेट। तो ये पहली एक साइड थी और ये क्या हो गई, दूसरी एक साइड हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डाइस क्या है, ये डाइस तो है केवल एक ही, लेकिन इसकी ये साइड है, ये साइड कितनी हो गई, यहाँ पे 2 साइड हो गई। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी डाइस को किसी भी एंगल से अगर देखते हैं तो वही क्या हो जाती है, उसकी साइड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड साइड। ये हमारी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। साइड की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, साइड की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि आगे जब भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चन के अंदर एक ही डाइस की बहुत सारी साइड दी हुई होंगी। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन दीज टाइप्स एंड दीज टाइप्स द फर्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द अपोजिट सरफेसेस। यानी कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि भाई इसके अपोजिट सरफेस कौन सा होगा। अगर मान लो कि सारी की सारी स्टैंडर्ड डाइस दे रखी हैं, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पहले से गिवन हो द गिवन डाइस इज द स्टैंडर्ड डाइस है, देन व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 3, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 4 है। तो उस टाइम पे तो हमें क्या है, उस टाइम पे हमें साइड देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। कोई भी डाइस की साइड हमें देखेंगे ही नहीं। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस दे रखी हो तो उस टाइम पे हमें तो नहीं पता ना कि व्हाट विल बी अपोजिट ऑफ 1, क्योंकि इन द स्टैंडर्ड डाइस है दैट विल बी 6 है। But in the non-standard dice, it can be opposite. The opposite of 1 can be 2, 1 can be 3, can be 4, can be 5. तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस बचते हैं आपके कि कोई भी उसका अपोजिट सरफेस हो सकता है। अब अगर इतने सारे ऑप्शन हैं कि भी कोई भी अगर ऑप्शन हो सकता है तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द टू फाइंड आउट अपोजिट सरफेस। इन द सेकेंड वन we will discuss to find out the adjacent surface. Adjacent surface कैसे find out करेंगे हम। Adjacent surface का मीनिंग क्या हो गया, this is the dice and it will be given that there will be 1, there will be 2 and there will be the question mark. So we have to find out the question mark place. And the third one is non-verbal dice. Non-verbal dice क्या होगी। Okay, the first one is to find out opposite surfaces. अपोजिट सरफेस को हमें फाइंड आउट करना है। तो अपोजिट सरफेस को जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बाय द दीज प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज two common surface. Two common surface, it means there are two sides of a dice. These are the two sides, not these are the two dice. These are the two sides. ये एक ही डाइस की 2 साइड हैं। 2 साइड का मीनिंग, एक साइड से अगर जब हम देखते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ये 3 सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं। और अगर एक साइड से हम देख रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ये 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। अब आपको केवल ये 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट विल बी अपोजिट ऑफ 5, कि 5 के अपोजिट में क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अभी हमने बात की कि भाई हम इसको फाइंड आउट करेंगे 2 कॉमन सरफेस प्रोसेस से। तो बाय दिस प्रोसेस व्हाट वी विल चेक दैट इन दीज 2 साइड्स विच 2 surfaces are common. तो which two surfaces are common? If we see in the first side and the second side, that time 1 and 3. 1 and 3 are the common surfaces. Okay, and these are the common surfaces. It means 5 and 2. These are the remaining surfaces. These remaining surfaces are the opposite surface. It means what is this? By the 2 common surfaces we can find out one opposite pair. हम कॉमन सरफेस से 2 कॉमन सरफेस से केवल एक अपोजिट पेयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 5 का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि 5 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगर केवल यही 2 साइड दी हुई होती और इन 2 साइड से अगर फाइंड आउट करना है कि अपोजिट ऑफ 1, कि भी 1 का जो अपोजिट है वो क्या होगा। अब यहाँ पे 1 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा। अब हमारे पास ऑप्शन है,
ऑप्शन क्या है कि हम जब इन दोनों साइड्स को देखते हैं, इन दोनों साइड से हमें पता चल गया कि जो रिमेनिंग सरफेसेज हैं ये तो क्या हो गए, अपोजिट हो गए, यानी कि 5 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। 1 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बिकॉज 3 इज़ द एडजेसेंट सरफेस ऑफ 1। तो वहाँ पीछे जब हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमें याद रखनी है ये चीज़ कि एक सरफेस का केवल एक ही अपोजिट सरफेस होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, एडजेसेंट सरफेस होते हैं। तो 3 अगर उसका एडजेसेंट सरफेस है तो इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकता, ये अपोजिट सरफेस नहीं हो सकता। और अगर ये अपोजिट सरफेस नहीं हो सकता तो इसका मतलब 5 भी नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या बच गया, हमारे पास ऑप्शन बच गया कि 4 और 6। अब हमारे पास केवल ये 2 ऑप्शन बच गए कि 1 का जो अपोजिट है वो 1 का अपोजिट क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है और या फिर 6 हो सकता है। अब ये कंफर्म नहीं है, क्या नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि 1 का जो अपोजिट होगा वो 4 ही होगा या फिर 6 ही होगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई 5 का अपोजिट तो क्या हो गया, 2 हो गया, और 5 का अपोजिट अगर 2 है तो इसका मतलब ये कौन सी डाइस हो गई, स्टैंडर्ड डाइस हो गई। और अगर ये स्टैंडर्ड डाइस हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट नो, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही अपोजिट पेयर का सम अगर 7 है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगी, वो क्या होगी, ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको अभी 2 नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात की थी कि जिसके अंदर केवल एक पेयर अपोजिट हो सकता है, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। बट ये नेसेसरी भी नहीं है कि हमेशा एक पेयर आपका अपोजिट रहेगा ही रहेगा, कोई भी पेयर अपोजिट ना हो, अपोजिट का जो सम है वो 7 ना हो, किसी के अंदर हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम में केवल एक पेयर, एक अपोजिट पेयर का सम क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी क्या हो, स्टैंडर्ड डाइस हो। तो यहाँ पे जो 1 है उस 1 का जो अपोजिट होगा वो 1 का अपोजिट या तो 4 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। द अनदर वन सरफेस इज 3, कि 3 का जो अपोजिट होगा वो 3 का अपोजिट क्या होगा। तो अब 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट में भी 3 का एडजेसेंट सरफेस क्या हो गया, 1 हो गया एंड 5 हो गया। यहाँ पे भी 3 का जो एडजेसेंट सरफेस है वो क्या हो गया, 1 एंड 2 हो गया, यानी कि 2 सरफेस बच गए। और वो दोनों सरफेस कौन कौन से बच गए, 4 और 2, 4 और 6 है। तो यहाँ पे 3 का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 और 6 है। बट हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते कि एक ही टाइम पे एक सरफेस 2 का अपोजिट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 का सरफेस है, अपोजिट सरफेस अगर 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 3 का जो अपोजिट सरफेस है वो क्या ले रहे हैं, 4 ही ले रहे हैं। हम इसको लिखेंगे 6 और 4। अगर 1 का अपोजिट सरफेस 4 है तो 3 का अपोजिट सरफेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 1 का अपोजिट सरफेस 6 है तो 3 का अपोजिट सरफेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट। ओके, here in the second one more question we will discuss, that is in this there are 3 sides of a dice, the first one, the second one and the third one. These are the 3 sides of a dice. Here also, and in these 3 sides we have to find out the opposite of 1. So here also what we will check, we will check that कि which 2 surfaces are common. If we see in the first and second, here is 1, 6, 5 and here is 3, 4 and 5. In these 2 sides only one surface is common and that is 5. If we see in the second and third, there is 3, 4 and 5 and here is 4, 6 and 5. Here are 2 surfaces are common, and which 2 surfaces are common, here is common are 4 and 5. These 2 surfaces are common in these 2 sides. It means the 4 and 5, this is also the 4 and 5. So what will be the opposite surface, opposite surface will be 3 and 6. But how we will find out the opposite of 1, because we need to find out the opposite surface of 1. It means from second and the third we cannot find out the opposite surface of 1. Then what we will do, we will check that is there any common between first and third. If we see in the first and third, that time it is given that 6 and 5, 6 and 5, 6
and 5. These are the common surfaces in the first and third side of the dice. What are the remaining surfaces? The remaining surfaces is 4 in the third side and 1 in the first side. It means 1 and 4, these are the opposite surfaces. It means from first and third we can find out by taking the two common surfaces, the opposite of 1 is 4, and from second and third we can find out 4 and 5 are opposite, 4 and 5 are the common surfaces. It means 3 and 6 are the opposite. 3 and 6 are the opposite. If we are having two opposite pairs, the first one is this and the second one is this, then we can find out the third pair also. How? It means 2's opposite is 5. Here we can find out all the three opposite pairs, but it is possible, it can be possible by taking the three sides of a dice. That time, if it is given only the two sides and in there only two surfaces are common, that time we can find out only the one opposite pair, but by this we were able to find out all the three opposite pairs. The next one is the process by which we can find out the opposite surfaces, and the next one is the one common surface. The next one is one common surface. In the previous type there were the two surfaces were common, but in this only one surface is the common. These are the two sides. The first one is this side and this is the second side of the dice. In this, if we see in the first and the second, that time 2 is the common surface. 2 is the common surface. Now how we can find out the opposite pairs? We will take the common surfaces at the first. From the first dice we will write 2 here, and from the second side the common surface we will write at the below the upper 2. Now what we will do? Now this time we will move in the clockwise direction. Clockwise direction, it means this is the clockwise direction. So if this is the clockwise direction, then first if we will start from the 2, that time the next surface will be 2, then 5, and after the 5 then 3, and after 3 that is 2. So this is the clockwise direction. This is the clockwise direction. So from 2 we will start 2, 5, 3. In the second dice we will start from 2 and we will move in the clockwise direction. Then after 1 at the 6, and after 6 this is 2. This is the clockwise direction. So we will start from 2, 1 and 6. Now these two are the opposite surfaces and these two are the opposite surfaces. If we are having the two opposite pairs, opposite of 1 that is 5, opposite of 6 that is 3. From the key points if we see, that time we know that one surface is having only one opposite surface. It means these two surfaces are having the opposite surface. This is the fifth surface. It means the remaining surface is the opposite of 4. It means 2 and 4 are the opposite surfaces. So by one common surface, how we will find out the opposite pairs? We will take the common surface. After that we will move in the clockwise direction, and after the moving clockwise direction, these are the opposite pairs and the remaining surface will be opposite of the common surface. For this we can take one more question on the basis of one common surface. Here there are the
3 sides. These are the 3 sides. Now what we will do, we will check that the first side 1 4 3 and here is 2 5 and 6. There is no common surface between 1 and second. यहाँ पे ना तो 1 और सेकंड के बीच में कोई भी कॉमन सरफेस है. इट मीन्स व्हाट वी विल डू, वी विल चेक सेकंड एंड थर्ड. इन द सेकंड एंड थर्ड 1 2 5 6 2 5 and 3 there are 2 common surface, and in the second there are 2 common surface. It means we can find out only the one opposite pair. Now what we will do, we will compare first and third. Here 1 4 3 and 3 5 2. It means the common surface is 3. We got the common surface. Then from the first side we will write 3 in the clockwise direction 1 4, and in third 3 5 2. It means 1 and 5 is opposite and 2 and 4 is opposite. The remaining surface is opposite of 3. So here we can find out all the 3 opposite pairs. The opposite of 1, that is 5, opposite of 2, that is 4, and the opposite of 3, that is 6. So these were the 2 types or 2 process to find out the opposite surfaces. But sometimes if we follow these rules, that time there is a problem. This type of problem we will face at that time. Let's see in this question here. In the first and second, is anything common in these? Yes, dollar is common in these. It means what we will do, we will take a dollar hash and add. Here also dollar star and plus. And in the next, there is anything common? Yes, there is star is the common. So star plus and percent. Here is also star, dollar and at. Now what is the problem? Problem is that here at is opposite of plus and here percent is opposite of at. It means at in these are the 4 sides of the single dice. But how it is possible that at is here from the first and second at is opposite of plus, and in the third and fourth at is opposite of percent. So definitely we know that this is the wrong question. That is the wrong question. But sometimes it was given in the question paper, NTSC question paper. We have seen this type of question. So how we will solve this type of questions? What I said, the key point. मैंने आपको बताया भी था कि जो की पॉइंट है वो आपके कंप्लीट डाइस के टॉपिक में काम आएगा. अब वो काम कैसे आएगा, वो अब काम आएगा अगर जब हम 1 कॉमन सरफेस या 2 कॉमन सरफेस ले रहे हैं, उस टाइम के ऊपर हमारे पास 2 तरह के अपोजिट सरफेसेस आ गए, जबकि पॉसिबल नहीं है. बिकॉज वी नो दैट 1 सरफेस इज हैविंग ओनली 1 अपोजिट सरफेस, और यहाँ पे एक ही सरफेस 2 तरह के अपोजिट सरफेस लिए हुए. तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? तो हम किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? बाय टेकिंग द एडजेसेंट सरफेसेस. वन मोर पॉइंट वॉज देयर कि एक सरफेस के केवल 4 एडजेसेंट सरफेस हैं, उससे ज़्यादा एडजेसेंट सरफेस नहीं हो सकते. तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, मान लिया हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया स्टार. Here we will find out the adjacent surfaces of a star. तो स्टार के अगर मैं adjacent surface की बात करूं तो यहाँ पे डॉलर प्लस 2 हो गए, परसेंट 3 हो गए, और यहाँ पे हो गया एट. तो इसका मतलब है जो स्टार है, स्टार का जो अपोजिट सरफेस है, वो जो रिमेनिंग सरफेस है वही इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट सरफेस हो जाएगा. और अगर यही इसका अपोजिट सरफेस, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार का अपोजिट जो सरफेस होगा वो स्टार का अपोजिट सरफेस आ जाएगा आपका हैश. यहाँ इतना सोल्व करने के बाद हमारे पास एक चीज़ आ गई कि यहाँ पे हैश का अपोजिट सरफेस क्या है, स्टार. तो इसका मतलब है 99% एट का अपोजिट सरफेस प्लस हो जाएगा, और डॉलर का जो अपोजिट सरफेस है वो आपका परसेंट हो जाएगा. क्लियर है ये चीज़ें? अगर हम आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं.
यहाँ पे हम इसको ले चुके हैं। उसके बाद एक ऐसे ही साइन को फाइंड आउट करेंगे हमें जो हमें क्वेश्चन को ज़्यादा सोल्व करने में आसानी कर सके। तो हम यहाँ पे लेते हैं प्लस को। अब प्लस के जो एडजेसेंट सरफेस हैं वो प्लस के एडजेसेंट सरफेस क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो ये दोनों अपोजिट फाइंड आउट कर चुके हैं हमें, तो इसका मतलब क्या होगा? हैश भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? स्टार भी हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द टू अपोजिट पेयर्स। और अगर अपोजिट पेयर है तो अब ये किसी और के अपोजिट नहीं हो सकते, ये किसी और के एडजेसेंट हो सकते हैं। तो प्लस के जो एडजेसेंट सरफेस हैश एंड स्टार ये दो हो चुके हैं। बाकी जो आएंगे प्लस का एक और यहाँ से हमें मिल गया परसेंट, और प्लस और यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें मिल गया इसका डॉलर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लस है, प्लस का जो अपोजिट सरफेस हो गया वो क्या हो गया? ऐट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमने क्या बताया था कि यहाँ से अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फाइंड आउट होने के बाद हम यहाँ इस रूल से फाइंड आउट हो सकता है। तो प्लस का अपोजिट हो गया @ स्टार का हो गया हैश, इसका मतलब डॉलर का जो अपोजिट सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। तो समटाइम्स इस तरह का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन रॉन्ग है, रॉन्ग क्वेश्चन होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, बिकॉज द एग्जामिनर वांट टू चेक द बेसिक नॉलेज ऑफ द डाइस। और ये हमारे बेसिक क्वेश्चन से जो आपका की पॉइंट्स है उस की पॉइंट से ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? सोल्व हो रहा है कि एक सरफेस केवल एक ही एडजेसेंट, 4 एडजेसेंट सरफेस और एक ही अपोजिट सरफेस रख सकता है। क्लियर है ये चीज़ें? अब इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए क्या होगा कि एक क्वेश्चन और भी बनता है। एक क्वेश्चन कौन सा बनता है? ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एनटीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ 2 शेप दी हुई हैं और इस शेप में से आपसे पूछा गया कि भी जो ग्रीन है, जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का जो अपोजिट सरफेस है वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा। अब ग्रीन कलर का जो अपोजिट सरफेस है वो फाइंड आउट अगर हम करें तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन क्या होगी? कन्फ्यूजन ये होगी कि अगर 2 डाइस दे रखी है हमें, कोई भी सरफेस उनमें क्या नहीं है? कॉमन नहीं है कि भाई 1 2 3 और 4 5 6 आपको ये 2 डाइस दे दी और इन दोनों डाइस के ऊपर ये क्या दे दिया? आपको सरफेसेस दे दिए। और 2 डाइस नहीं, सॉरी 2 साइड दे दी एक ही डाइस की। ये एक साइड हो गई और ये क्या हो गई? आपकी दूसरी साइड है। एक ही डाइस की ये 2 साइड हमें दे दी गई। अब बात ये आती है कि यहाँ से पूछा जाता है कि भाई 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या हो गया और 3 का अपोजिट क्या हो गया। क्लियर है जी? तो उस टाइम के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स के ये माइंड में कन्फ्यूजन भी होती है और ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की भी नहीं है। कई बार टीचर उनको ऐसा बता देता है, किसी ने ज़रूर बताया, तभी मुझे ये क्वेश्चन हमेशा याद रहता है कि अगर ऐसा दिया हुआ हो ना तो उस टाइम पे 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 4 कर देना है। बट ऐसा नहीं है। वो इतना श्योर से बोलते हैं कि ये फिर उसके ऐसे अपोजिट होते हैं। ये कभी भी ऐसे अपोजिट नहीं हो सकते। ये कभी भी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि यहाँ पे 3 है और उसका अपोजिट यहाँ पे 6 मिल जाए। अगर ये 1 है तो 1 का अपोजिट 4 और 2 है तो 2 का अपोजिट 5 मिल जाए। अगर आपको ऐसी लग रहा है कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी। अगर आपको लगे कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो टेक 2 क्यूब्स और उनके ऊपर आप क्या करें? मार्कर से 1 2 3 4 5 6 लिखें और आप उनको ऐसे पुट करके देखें कि अगर वो इसी पोजीशन में अगर पुट हो जाते हैं तो मैं आपकी बात मान लूँगा। अदरवाइज इसका मतलब ये पोजीशन क्या नहीं है? ये पोजीशन आपकी पॉसिबल ही नहीं है। और बिना पॉसिबल होने के बाद भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया एनटीएससी के अंदर कि भी ये 2 शेप दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्यूबॉइड डाइस नहीं बोल रहा है एग्जामिनर बोल रहा है कि दीज आर द 2 शेप्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर के अपोजिट में क्या हो सकता है? तो अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि ये शेप पॉसिबल नहीं है तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये जो शेप यहाँ पे रखी हुई है उस तरह से भी ये जो पोजीशन होगी ये पोजीशन क्या नहीं होगी? पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अब बात है कि क्वेश्चन किसका है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग लगानी है यहाँ पे, हमें मैथमेटिक रूल नहीं फॉलो करना है कि अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें रीजनिंग यूज़ करनी है। और रीजनिंग क्या है? रीजनिंग ये है
कि हम इसको फाइंड आउट करेंगे उसकी शेप के अकॉर्डिंग, कि ग्रीन की शेप अगर इस तरह की है ना तो सीधी सी बात है ग्रीन का अपोजिट सरफेस यही हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इस शेप के पीछे जो बड़ा जो सरफेस है वो सरफेस इस शेप के अंदर केवल यही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रीन का जो अपोजिट है वो अपोजिट क्या हो गया, वाइट हो गया। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं कि ये जो दो पोजीशन है ये दोनों पोजीशन आपकी पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ ए ग्रीन कलर। यहाँ पे आपको रीजनिंग यूज़ करनी थी, और वो रीजनिंग क्या थी कि ये जो शेप है वो शेप इसके अंदर केवल यहाँ पे ही है, इसका मतलब ग्रीन इज अपोजिट ऑफ ए वाइट। तो जी क्लियर हो गया, तो ये आ जाएगा आपका वाइट। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन ये यहाँ पे था यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। अब इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि भी आपको बताना है कि 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है और 3 का अपोजिट है वो क्या है। तो इस बात को माइंड से निकाल दो कि अगर ये क्यूब शेप है, अगर ये क्यूब शेप है तो 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट 6, ये है आपका गलत है। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दी जाएगी, और जब तक वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तब तक हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि इफ़ 1 इज अपोजिट ऑफ 5, इफ 1 is opposite of 5, then what will be opposite of 2 and what will be opposite of 3। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी जाएगी। अगर ये नहीं दी जाती है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि 1 इज़ अपोजिट ऑफ 5, तो 2 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे ये अगर दोनों अपोजिट हैं तो 3 का अपोजिट होगा आपका 4 और 2 का अपोजिट होगा आपका 6। दीज आर द पॉसिबल पोजिशंस ऑफ अ डाइस। अगर 1 अपोजिट है 5 के तो 3 का अपोजिट 4 होगा और 2 का अपोजिट आपका 6 होगा। क्लियर है जी, वेरी गुड। अगर मान लो दे दिया जाए कि 1 का अपोजिट है 6, 5 नहीं दिया 6 दे दिया, भाई ये है आपका 2 3 1 और इसका 6 दे दिया अपोजिट, तो उस टाइम पे आप क्या कर लेंगे, इस टाइम पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 को हमने क्या लिया ऊपर ले गए, ये 4 था ये यहाँ आ गया और ये 5 था ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 6, 3 का अपोजिट क्या हो गया 5 और 2 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया। अगर आप रोटेट नहीं करते हैं तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 6, 3 का अपोजिट क्या हो गया 5 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है जी, वेरी गुड। तो ये थे आपके अपोजिट सरफेस को फाइंड आउट करना फोल्डेड डाइस से। अब फोल्डेड डाइस के बाद अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो टॉपिक था कि टू फाइंड आउट द एडजेसेंट सरफेस। और एडजेसेंट सरफेस को समझने से पहले हम एक टाइप और डिस्कस करेंगे और वो क्या है आपकी ओपन डाइस। ये कोई टॉपिक नहीं है लेकिन ये भी हमारी एक बेसिक नॉलेज है। जैसे कि हमने बेसिक नॉलेज हमने पहले ली थी कि कितने टाइप की डाइस होती है, स्टैंडर्ड डाइस हो गई, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गई, 6 सरफेस होते हैं, वो भी आपकी एक बेसिक नॉलेज है। ऐसे ही ओपन डाइस भी आपकी एक बेसिक नॉलेज है। यानी कि जब हम एक डाइस को अनफोल्ड करते हैं, ओपन डाइस का दूसरा नाम है अनफोल्डेड डाइस और ओपन डाइस वी कैन से। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम इसको कई तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। ये कुछ शेप मैंने बनाई हैं जो आपकी ओपन हो सकती हैं, जबकि एक शेप और भी हो सकती है एंड दैट इज़ दिस वन। ऐसी बहुत सारी शेप्स हैं जो आपकी ओपन हो सकती हैं। तो ये कुछ शेप मैंने बनाई हैं जिसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि ये ओपन डाइस है। जब हम एक फोल्डेड डाइस के अंदर मैक्सिमम 3 सरफेसेस को देख सकते हैं और अगर मिनिमम की बात करें तो केवल एक ही सरफेस को देख सकते हैं। तो ओपन डाइस जो चीज़ है, ओपन डाइस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम सारे सरफेसेस को देख सकते हैं। 6 के 6 सरफेसेस को एक बार में देख सकते हैं। फोल्डेड में हम मैक्सिमम 3 सरफेस को एक बार में देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें 6 के 6 सरफेस देखने हैं तो हम अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा, तब जा करके हम उसको देख पाएंगे। अलग अलग साइड को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे
मैं आपको बता दूं कि वन का जो अपोजिट सरफेस होगा, वन का अपोजिट सरफेस होगा आपका 3, यानी कि बीच में एक सरफेस आएगा, वो उसका अपोजिट सरफेस होगा। 5 का अपोजिट सरफेस हो जाएगा 6 और 2 का अपोजिट सरफेस हो जाएगा 4। इन द नेक्स्ट, ये जो शेप है और ये जो शेप है इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस इस सरफेस को हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हियर इज ऑल्सो द सेम टाइप है, ये जो 1 और 4 अपोजिट है, ऐसे ही यहाँ पे 1 और 5 अपोजिट हो जाएंगे, 3 और 6 अपोजिट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग सरफेस आपके बच गए कौन कौन से, 4 एंड 2, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके ऑपोजिट सरफेस हो जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको ब्रेक करके और इसको हम यहाँ इस साइड ले जा सकते हैं, और जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वैसी ही शेप बन गई है, 1 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यहाँ पे सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं हमें 9, लेकिन ये 5 कंप्लीट सरफेस हैं, और जो ये जो सरफेस है इसको हमने ब्रेक किया हुआ है, और ब्रेक करने के बाद इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसका 1/4 पार्ट यहाँ पे आ गया, 1/4 पार्ट यहाँ पे आ गया, 1/4 पार्ट यहाँ पे आ गया और 1/4 पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 का अपोजिट 5 हो गया, 1 का अपोजिट 3 हो गया, और जो 2 का अपोजिट है वो हो जाएगा आपका 6। ये आपका 6 जो सरफेस है ये, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट सरफेस आपका क्या आ जाएगा, ये वाला सरफेस आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और जो 2 का जो अपोजिट सरफेस है वो 2 का अपोजिट सरफेस आपका आ जाएगा ये वाला सरफेस। अब एक चीज़ आपको इसमें माइंड में रखनी है कि जो ये 1/4 पार्ट यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर है, तो आप जो हमेशा देखेंगे कि अगला जो 1/4 पार्ट है वो इसी कॉर्नर पे है। अगर हम इनका प्लेस चेंज अगर हम कर देते हैं, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो 1/4 जो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो इनके जो 1/4 पार्ट होंगे हम यहीं रखेंगे। अगर हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं तो यहाँ पे ही हम इसको 1/4 पार्ट रखेंगे। ये माइंड में रखना है आपको। वन मोर पोर्शन इज़ देयर, दैट इज़ 1 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया। अब इसके अंदर क्या हो गया कि 2 पार्ट्स को डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स। अब अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो 2 पार्ट्स, अब ये 4 हाफ पार्ट्स हो गए। तो कौन से ऐसे 2 पार्ट्स हैं जो मिल करके केवल एक पार्ट को बना रहे हैं। तो ये माइंड में रखना कि कोई भी अपोजिट सरफेस में कभी भी मिल करके सेम पार्ट या सेम सरफेस नहीं बनाएगा। यहाँ पे अगर कोई बना रहा है तो ये 5 हो गया, इसका मतलब ये 2 हाफ पार्ट हैं, ये हाफ पार्ट मिल करके एक कंप्लीट सरफेस बना रहे हैं। और ये भी आपको माइंड में रखना है कि अगर ये यहाँ पे बॉटम यानी कि लोअर हाफ में अगर है तो एक सरफेस को छोड़कर ये भी लोअर हाफ में ही होगा। अगर ये अपर हाफ में है तो ये भी एक सरफेस को छोड़ के अपर हाफ में ही होगा। तो ये आपका कंप्लीट जो सरफेस हो गया वो कौन सा सरफेस हो गया, आपका 6th सरफेस हो गया। क्लियर है जी। तो ये है आपके ओपन डाइज। अगर हम किसी भी डाइज को ओपन करते हैं तो वो किस किस तरह से ओपन हो सकती है। ओके, नाउ आवर सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस which you can see in the exam question paper. Okay, to find out the adjacent surface. Adjacent surface it means यहाँ पे 3 सरफेस दिए हुए हैं, यहाँ पे भी तीनों सरफेस दिए हुए हैं, यहाँ पे भी तीनों सरफेस दिए हुए हैं, बट यहाँ पे 2 सरफेस दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखा है आपका क्वेश्चन मार्क। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। और हम इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो सिंपल तरीका है कि विद द हेल्प ऑफ ओपन डाइस। ओपन डाइस इट मीन्स वी विल ड्रॉ एन ओपन डाइस। ये हमने एक ओपन डाइस को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। और इस ओपन डाइस को ड्रॉ करने के बाद हम कोई भी 2 ऐसी साइड, अब ये कितनी साइड दे रखी हैं, ये 4 साइड दे रखी हैं। इन 4 साइड में से हम कोई भी ऐसी 2 साइड चूज करेंगे जिसके अंदर एक सरफेस कॉमन हो। सेकंड और थर्ड को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 2 और 5 कॉमन है, हम इसको नहीं लेंगे।
फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं तो इसके अंदर 1/4, इसके अंदर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं तो इसके अंदर है 143 और इसके अंदर 253। इसका मतलब यहाँ पे एक सरफेस कॉमन है जो कि क्या है 3। उस कॉमन सरफेस को, ये जो कॉमन सरफेस है, इस कॉमन सरफेस को हम पुट कर देंगे इस जगह पे, केवल और केवल यहाँ पे, और उसके बाद इसी तरह से हम इन साइड्स को क्या कर देंगे, लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 4 3 1, तो हम इसको लिखेंगे 4 से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 3 आना चाहिए, और 3 आने के बाद हमें ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करना है, और 1 आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। मैं एक और भी ओपन डाइस बनाता हूँ, आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन के लिए ये मैंने एक और ओपन डाइस बना दी है। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि वाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप, आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। 3 को तो हमें यहीं लिखना पड़ेगा, ये आपके लिए परमानेंट प्लेस है। अगर आप 4 को यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपके अगर 4 की पोजीशन चेंज हुई है तो आपके साथ साथ 1 की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। अब 1 की पोजीशन क्या होगी, यहाँ से 4 के ऊपर 3 पे जाएंगे। 3 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी यहाँ बनती है, और 4 की 3 1 यहाँ पे लग जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है 5 और 2, यानी कि 2 3 5, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही बनेगी 2 3 5, तो 2 3 5। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी 2 3 5। क्लियर है जी। अब जो रिमेनिंग सरफेस है उस रिमेनिंग सरफेस को हम यहाँ लिख लेंगे, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6। ये करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या सेकंड जो डाइस है, अब ये तो हमारी क्या है अपने अकॉर्डिंग है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या सेकंड जो साइड है डाइस की वो कंपेटिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका गलत है। अब हम इसको चेक करते हैं। 2 5 6, 2 5 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, 2 5 और 6। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो 6 ये नीचे है वो 6 आपका यहाँ पे भी है, ध्यान रहे। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो एज होगी, ये एज जिसको क्या होगी टच करेगी तो सीधी सी बात है कि अगर 6 नीचे है तो 6 यहाँ ऊपर भी है। तो क्लॉकवाइज में है या नहीं, 2 5 6 2 5 6, इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एडजेसेंट सरफेस। एडजेसेंट सरफेस को हमें फाइंड आउट करना है, तो एडजेसेंट सरफेस को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वी विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस। 6 1 देन क्वेश्चन मार्क, 6 1 देन क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये 1 चारों का, इस सरफेस का अपोजिट सरफेस केवल 5 है, इसका मतलब ये सब का एडजेसेंट सरफेस है। और अगर सब का एडजेसेंट सरफेस है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे 6 के बाद क्या है 1 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग आया है 2। हम चेक करते हैं सेकंड के अकॉर्डिंग, ये 6 के बाद क्या आ गया 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है। 6 1 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये वाला जो सरफेस और ये वाला सरफेस कहाँ है, ऊपर है, यानी कि 6 1 और 2। तो जो सेकंड है, सेकंड से भी हमारा क्या आया है 2 आया है। तो विद द हेल्प ऑफ ओपन डाइस वी कैन फाइंड आउट द एडजेसेंट सरफेस easily. Now we will take the next one question, and the next one question is, in this question there are the symbols, mathematical operations are used in this question, no 1 2 3 4 5 or the dots. Okay, no problem is there. Again what we will do, we will draw an open dice. This is the open dice. Here we will check in the 4 sides which 2 sides are having the common surface, one common surface. Okay, then in the first and second, at $hash %hash plus. So first and second is having one common surface and that is a hash.
तो here we will put a hash. After hash dollar hash at. तो dollar hash at. In this we started from this place, in this we started from this place, now we will start from this place. Dollar hash at, dollar hash at. And in the second percent hash plus. Keep this in mind. Always I am moving in the clockwise direction. So it means you will also move in the clockwise direction. So this is percent hash and plus. Now the remaining surface is the star. Again we will check the third side. It is compatible or not. So percent plus star, percent plus star in the clockwise direction. Good. Now to find out the adjacent surface we will start from a star. So star dollar question mark, star dollar question mark. Here is also dollar, here is also dollar, here is also dollar. तो स्टार डॉलर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे क्या है आपका ऐट. तो यहाँ जो सिंबल आएगा वो सिंबल क्या आ जाएगा आपका ऐट आ जाएगा. तो दिस वाज द टाइप टू फाइंड आउट द एडजेसेंट सरफेस. तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन क्या नहीं होंगे, सोल्व नहीं होंगे इजीली. नाउ द थर्ड टाइप इज द नॉन वर्बल डाइस. तो नॉन वर्बल डाइस के अंदर है क्या होगा कि जो आपको डाइस दी हुई होगी उस डाइस के अंदर है अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और डॉट्स के बजाय आपको कुछ फिगर दिखाई देंगे, कुछ सिंबल्स दिखाई दे सकते हैं. तो हियर इट इज़ आस्क्ड दैट कि दिस इज़ द अनफोल्डेड डाइस. ये एक अनफोल्डेड डाइस है और हमें ये चेक करना है कि जब हम इस अनफोल्डेड डाइस को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करेंगे तो फोल्डेड डाइस बन जाएगी और जब वो फोल्डेड डाइस बनेगी वो इनमें से किस तरह की डाइस दिखेगी. तो उसको सोल्व करने के लिए एक सबसे अच्छा और आसान तरीका पहले तो ये होता है कि जो भी ये टुकड़ों के अंदर जो आपको दिए हुए हैं सरफेसेस हैं, हम इनको क्या कर लेंगे, हम इनको कंबाइन कर लेंगे. कंबाइन कैसे करेंगे हम, कि मैं अगर इन सारे सरफेसेस को यहाँ पे बना लेता हूँ, तो अगर मैं इसको सारे सरफेसेस को यहाँ पे एक जगह पे अगर कलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, ये और भी इजी हो जाएगा. क्लियर है जी. अब और भी इजी हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सर्कल. ये है आपका 4 प्लेसेस, 4 पार्ट्स के अंदर इसको क्या किया हुआ है, कट किया हुआ था. यहाँ पे ये डार्क है, क्लियर है. ये जो सरफेस है जब ये यहाँ पे आएगा तो ब्लैंक रहेगा. ये जो सरफेस इसका जो 4th पार्ट यहाँ पे जो ये सरफेस है ये जब यहाँ पे जाएगा तो ये क्या रहेगा आपका ब्लैंक रहेगा. यहाँ जो सरफेस है ये आपका डार्क रहेगा. तो मैंने इस कंप्लीट चारों सरफेसेस को जो 1/4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था उसको कंबाइन करके एक कलेक्टिव सरफेस बना लिया. अब हम चेक करेंगे कि इन चारों के अंदर ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो फोल्ड करने के बाद ऐसा बन सकता है. अब सबसे पहले हमारे पास 6 के 6 सरफेस है और उन 6 के 6 सरफेस में ऐसा सरफेस कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा. ऐसा भी कोई सरफेस नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा. अब यहाँ पे ऐसा सरफेस है ना, ये सरफेस है वो यहाँ पे ऐसा सरफेस है. इसका मतलब हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये ड्रॉ हो सकती है या नहीं हो सकती. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा सरफेस है तो हम इसी को ले लेंगे, हम इसको पहले चेक करेंगे और जब हम इसको चेक करेंगे तो हम पता चलता है कि ये दोनों सरफेस क्या हैं, अपोजिट सरफेस हैं. और अगर ये दोनों अपोजिट सरफेस हैं तो ये क्या नहीं हो सकती, ड्रॉ नहीं हो सकती. बिकॉज वी नो दैट कि एक सरफेस का केवल एक ही अपोजिट सरफेस हो सकता है एंड अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी द एडजेसेंट सरफेस. और अपोजिट सरफेस कभी भी एडजेसेंट सरफेस नहीं हो सकता. और अगर एडजेसेंट सरफेस नहीं हो सकता तो इट मीन्स ये भी जो
डाइस है आपकी ड्रॉ नहीं होगी इस अनफोल्डेड डाइस से। अब हम इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, ये सर्कल है, सर्कल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक ब्लैंक सरफेस होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर वन मोर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो वन मोर ब्लैंक सरफेस है। इसका मतलब ये वाली जो डाइस होगी वो क्या हो जाएगी आपकी इजीली ड्रॉ हो जाएगी। नॉन वर्बल डाइस के अंदर हमें 3-4 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम 3-4 क्वेश्चन को कम से कम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये एक और अनफोल्डेड डाइस है। ये क्या है आपकी अनफोल्डेड डाइस है। इस अनफोल्डेड डाइस के अंदर जब हम इस अनफोल्डेड डाइस को फोल्ड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की शेप दिखाई देगी। बट वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि इसमें से ऐसी कौन सी शेप्स हैं जो ड्रॉ हो सकती हैं जब हम इसको फोल्ड करें। अब बात आती है कि केवल एक या फिर मोर देन वन। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मोर देन वन शेप कैन बी ड्रॉन व्हेन वी विल फोल्ड दिस अनफोल्डेड डाइस। ये आपको माइंड में रखना है। क्लियर है जी। अब हम इसको चेक करते हैं। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब ये सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पे कैसे इनके साथ कनेक्ट होगा। और ये जो सरफेस है, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ये जो सरफेस इसके साथ किस तरह से टच होगा, इसके साथ कैसे टच होगा और इसके साथ कैसे टच होगा, तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी क्लियर सी बात है कि अगर कोई भी सरफेस है, वो सरफेस एक साइड से, एक ही एज से चारों जो आपके सरफेसेस हैं उनसे अटैच नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक सरफेस है और ये इसके क्या हो गए, 4 एडजेसेंट सरफेसेस हो गए। तो हमें ये पता है कि जो ये सरफेस होगा, ये सरफेस आपका इस सरफेस से केवल यहीं इसी तरीके से अटैच होगा ना। अब इस सरफेस को तो हम अगर यहाँ पे नहीं कर सकते, ये एक बड़ी वो हो जाएगी। तो सिंपल सी क्लियर सी बात है कि जो ये सरफेस होगा वो सरफेस भी चारों तरफ से इन चारों सरफेसेस से अटैच होगा। अब यहाँ पे जब ये सरफेस इसके साथ अटैच होगा तो इसकी एक्चुअल में जो थोड़ी सी शेप चेंज हो जाएगी, और वो जो चेंज होगी वो कैसे बन जाएगी कि ये ऐसे आ जाएगा। अब जब ये यहाँ पे एक कॉर्नर जो बन रहा है, यहाँ जब ये सरफेस यहाँ पे आएगा तो ये जो वर्टेक्स है ये घूम करके आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर जब ये आएगा तो इसका मतलब है कि जो ये लाइन है, ये लाइन आपकी आ जाएगी यहाँ पे बीच में। क्लियर हो गया जी। अब यानी कि जब हम एक जिप को बंद करते हैं, अगर किसी कपड़े के अंदर कोई जिप लगी हुई है और जब हम उस जिप को बंद करते हैं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक जिप लगी हुई है, और वो जब जिप बंद होगी तो वो इन दोनों एजेस को मिलाती हुई चली जाएगी। और जब ये दोनों एजेस मिल जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अगर जब ये वर्टेक्स ऐसे रोटेट करके जब ये यहाँ पे आएगा तो जो ये ब्लैंक हाफ पार्ट है, वो ब्लैंक हाफ पार्ट आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जो ये शेडेड पोर्शन है, वो शेडेड पोर्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। और जब ये शेडेड पोर्शन यहाँ आ जाएगा तो उस टाइम पे ये सरफेस इस सेकंड वाले सरफेस के साथ कुछ इस तरह से टच हो जाएगा। क्लियर है जी। अब यहाँ पे भी हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी एक जिप लगी हुई है, और जब वो जिप बंद होगी तो उस टाइम पे ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आकर के यहाँ पे टच हो जाएगा। और जब ये यहाँ पे टच हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो हाफ पोर्शन है, वो हाफ पोर्शन अब ऐसे हो जाएगा, जो ब्लैंक है वो ऊपर रह जाएगा, और जो ये शेडेड पोर्शन है, वो शेडेड पोर्शन आपका कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद जब ये शेडेड पोर्शन यहाँ पे आएगा तो ये उस टाइम पे आपका ये आ जाएगा ऐसे कि ये जो डार्क सरफेस है, वो डार्क सरफेस आपका अब कहाँ आ गया है, अब आपका डार्क सरफेस यहाँ इस सरफेस की तरफ आ चुका है। और जब ये इस सरफेस की तरफ आएगा तो उस टाइम के ऊपर आपके जो ये शेडेड पोर्शन होगा वो यहाँ पे, और जो ब्लैंक पोर्शन होगा वो बाहर की साइड हो जाएगा। ये
सरफेस इन चारों सरफेसेस से इस शेप के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो सरफेस है वो भी इनके चारों के साथ कनेक्ट है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो हैविंग द 4 सरफेसेस। तो ये जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो उस टाइम के अंदर जो ये ब्लैंक सरफेस है, ब्लैंक सरफेस आ जाएगा आपका इसकी साइड, और जो आपका शेडिड पोर्शन है वो शेडिड पोर्शन आपका आ जाएगा बाहर की साइड। फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे टच होगा उस टाइम पे आपका शेडिड पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा, और ब्लैंक सरफेस रहेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, लोअर पोर्शन पे। और द लास्ट वन इज वैन जब ये यहाँ पे जाएगा तो उस टाइम पे आपका जो शेडेड पोर्शन रहेगा वो कहाँ जाएगा आपका, यहाँ अंदर की साइड, और जो ब्लैंक सरफेस रहेगा वो ब्लैंक सरफेस आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर की साइड। अब हम इनको चेक करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं फर्स्ट को। जब हम फर्स्ट को चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सर्कल जो कि यहाँ पे है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम मूव करेंगे। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो सर्कल, सर्कल के बाद आपका क्या है, स्क्वायर। तो ये सर्कल, सर्कल के बाद ये एक आपकी रेक्टेंगल शेप में है जो यहाँ पे। और जब इसके बाद हम राइट साइड में टर्न करते हैं तो यहाँ पे जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हम लेंगे इस वाले पोर्शन को, ना कि हम लेंगे इस वाले पोर्शन को। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, और हमें मूव करना है किसके अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो सर्कल, सर्कल के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद हम लेंगे इस वाले सरफेस को। अब ये जो सरफेस होगा ये हम चेक करेंगे कि सर्कल के साथ कैसे कनेक्टेड है और रेक्टेंगल के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सर्कल के साथ जब मैं इस सरफेस को देखता हूँ तो यहाँ पे हाफ ब्लैंक होना चाहिए। ये जो हाफ ब्लैंक है ये इसके साथ कम्प्लीटली फिल्ड है। बिल्कुल क्लियर है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद जब मैं स्क्वायर के साथ इसको देखता हूँ तो स्क्वायर के साथ ये क्या है कि सर्कल की साइड वाले के अंदर तो क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, और नीचे की साइड क्या होना चाहिए, ये शेडिड होना चाहिए। तो सर्कल की साइड वाला पोर्शन है वो क्या है आपका, ब्लैंक है, और नीचे की साइड आपका शेडिड है। तो जो आपकी ये फर्स्ट है, फर्स्ट इसके अंदर क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। अब हम करते हैं सेकंड वाले के अंदर। सेकंड वाले के अंदर अगर हम चेक करें तो ये जो दोनों सरफेसेस हैं ये दोनों सरफेसेस अपोजिट सरफेस है, और यहाँ पे दोनों क्या दे रखे हैं, एडजेसेंट दे रखे हैं। तो ये क्या नहीं होगी आपकी, पहले ही ड्रॉ नहीं होगी। यहाँ पे भी दोनों सरफेसेस को एडजेसेंट दे दिया तो ये भी क्या नहीं होगी आपकी, ड्रॉ नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लास्ट वाली। लास्ट वाले के अंदर अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो दिस इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद आपका सर्कल है। तो दिस इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद आपका क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो ये वाला सरफेस है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो अब हमारे पास कौन सा सरफेस ले रहे हैं, हमें ये वाला सरफेस ले रहे हैं। लेकिन जब हम इस ये वाले सरफेस को ले रहे हैं उस टाइम के ऊपर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगल के साथ में शेडिड पोर्शन है। यहाँ पे रेक्टेंगल के साथ में कौन सा पोर्शन है, ब्लैंक। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो शेप है ये शेप इसकी क्या है, गलत है। केवल आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो वाली शेप इसकी ड्रॉ होगी जब हम इसे को फोल्ड, एक अनफोल्डेड को जब हम फोल्ड करेंगे। अब हमारे पास है, जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर है कि जो ये शेप होती हैं जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही शेप ड्रॉ होगी, ये आपकी बहुत सारी शेप ड्रॉ हो सकती हैं। अब यहाँ इसके अंदर आपको ऑप्शन के अंदर देख के आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की सारी शेप ड्रॉ हो रही हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि केवल 3 ड्रॉ हो रही हैं। सेकंड ऑप्शन कुछ कह रहा है और फर्स्ट ऑप्शन आपका कुछ कह रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे। तो हम उसको ड्रॉ कर चुके हैं तो वो आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फास्टली मूव करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट के अंदर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के साथ में आपका क्या दिया हुआ है, ब्लैंक सरफेस दिया हुआ है। यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के साथ में ब्लैंक सरफेस इस साइड भी है, और सर्कल के साथ में ब्लैंक सरफेस आपका इस साइड में भी है। हम दोनों को चेक करेंगे कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है। जब मैं इसको यहाँ इससे चेक करता हूँ तो इससे चेक करने के बाद जब इस सर्कल के साथ में यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ से आने के बाद अगर मैं इस सरफेस के ऊपर जाऊँगा तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पे ये ब्लैंक है, ये डार्क है। इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ऊपर ब्लैंक हो गया, नीचे क्या हो गया आपका, डार्क हो गया। तो जब इस सरफेस के साथ ये कैसा होना चाहिए, हाफ ब्लैंक हाफ डार्क, हाफ ब्लैंक हाफ डार्क, और सर्कल की साइड में अनपेंटेड यानी कि बिल्कुल ब्लैंक है। तो ये वाली बन रही है। सेकंड वाली चेक करते हैं।
सेकंड वाली जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जब ये सरफेस यहाँ आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डार्क साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करता हूँ मैं यहाँ से कि भाई ये एक सरफेस है जो डार्क सरफेस है, ये एक सरफेस है जो डार्क सरफेस है, डार्क सरफेस के साथ में क्लॉकवाइज के अंदर ब्लैंक है, डार्क सरफेस के साथ क्लॉकवाइज में ब्लैंक है, और यहाँ पे दोबारा क्लॉकवाइज में मूव करता हूँ तो ब्लैंक है, यहाँ पे भी दोबारा जब मैं आगे मूव करूँगा क्लॉकवाइज में तो एक ब्लैंक सरफेस होना चाहिए, जो कि ये वाला यहाँ पे है। तो सेकंड वाली भी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। फिर थर्ड वाली के अंदर चेक करते हैं। थर्ड वाली के अंदर दोबारा से क्या दे दिया कि ये एक डार्क दे दिया, ये ब्लैंक था, और ये ऐसा, यहाँ पे भी ये एक सर्कल है, यहाँ पे ब्लैंक है, और ये इस तरह से। तो यहाँ इस वाले को लेकर के हम क्या कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं। तो अब मैं लूँगा इस वाले को चेक करेंगे। ये डॉट डॉट के बाद क्या आ गया, ब्लैंक, डॉट डॉट के बाद क्या आ गया, ब्लैंक। अब इस सरफेस को चेक करेंगे हम। जब ये सरफेस यहाँ पे आएगा तो ब्लैंक कहाँ जाएगा, अंदर, और डार्क कहाँ जाएगा, बाहर। यहाँ पे ब्लैंक नीचे आ जाएगा, डार्क बाहर आ जाए, ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो डार्क अंदर की साइड और ब्लैंक कहाँ जाएगा, बाहर की साइड। और ऐसा ही इसके अंदर भी है, डॉट ब्लैंक डार्क, डॉट ब्लैंक डार्क, तो थर्ड भी बन जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। जब हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाला सरफेस लेंगे, ये वाला सरफेस लेंगे, और ये वाला, इन तीनों जो सरफेसेस हैं इनसे ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो वेरी क्लियर इट वॉज। एंड द नेक्स्ट वन मोर वी विल सी हियर। यहाँ पे चेक करते हैं भाई, देखो जब हमें फर्स्ट को चेक करते हैं तो फर्स्ट में चेक करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो क्या है कि ब्लैंक होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज में मूव करते हैं तो यहाँ पे भी ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गए, दो ऑप्शन हो गए, जब हम यहाँ इस साइड भी मूव कर सकते हैं और जब हम यहाँ ऊपर की साइड भी मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं तो हमें ये सरफेसेस की जो शेप है वो सरफेसेस की शेप हमें पता होनी चाहिए। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये आ जाएगा इस साइड से, जब ये यहाँ पे आएगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे आपका आ जाएगा ये यहाँ पे, और जब ये यहाँ लास्ट में आएगा तो उस टाइम के ऊपर ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, इसका ये भी ले लेते हैं हम जल्दी से। जब ये होगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप जा कर के बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। नॉन वर्बल जो डाइस है वो एक्चुअल में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट है, बस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, जो कि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से इसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो अब हम चेक करते हैं ब्लैंक, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाद में ब्लैंक सरफेस। तो रेक्टेंगल के बाद में ब्लैंक सरफेस, और ब्लैंक सरफेस के बाद में जब हम इसको चेक करते हैं तो ब्लैंक के साथ में क्या होना चाहिए, यहाँ इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ब्लैंक, और यहाँ पे क्या दे रखा है, शेडेड पोर्शन। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको तो लेकर के हम नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर के हम करते हैं। ये है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के साथ में क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक के रेक्टेंगल के साथ में ब्लैंक है, ब्लैंक के साथ में क्या हो गया, ब्लैंक आ गया, यहाँ पे भी ब्लैंक आ गया। और इसको जब हम यहाँ लेते हैं तो रेक्टेंगल के साथ में ये शेडेड होना चाहिए, तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल के साथ में क्या हो गया, ये शेडेड पोर्शन है। तो पहली आपकी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। फिर हम सेकंड को चेक करते हैं तो सेकंड के अंदर दोनों अपोजिट सरफेस हैं, अपोजिट सरफेस कभी भी क्या नहीं हो सकते, एडजेसेंट सरफेस नहीं हो सकते, तो सेकंड आपकी नहीं बनेगी। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं इसको, यहाँ इसके अंदर भी क्या है, दो अपोजिट सरफेसेस को एडजेसेंट सरफेस बनाया हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगी आपकी। नेक्स्ट को हम चेक करते हैं तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाद में क्या दे रखा है आपका, शेडेड पोर्शन। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाद में शेडेड पोर्शन है, तो यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन आ गया। क्लियर है जी। उस शेडेड के बाद में आपका एक ब्लैंक सरफेस दे रखा है और ब्लैंक के साथ में ब्लैंक होना चाहिए, तो उस शेडेड के साथ में ये ब्लैंक है, ब्लैंक के साथ में ये ब्लैंक हो जाएगा, तो ये आपकी फोर्थ है आपकी बन जाएगी। अगर हम इसको लेकर के चेक करते हैं कि भाई इसको लेकर के भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद शेडेड, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद शेडेड, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैंक आना चाहिए उस ब्लैंक के साथ में ये शेडेड आ रहा है, जबकि यहाँ पे ब्लैंक के साथ में शेडेड नहीं है, तो हम इस वाले को ही ले सकते हैं, ना कि उस वाले को। तो फर्स्ट एंड फोर्थ बन जाएगी, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये केवल तीन ही टाइप थी, टू फाइंड आउट द एडजेसेंट सरफेस, टू फाइंड आउट द अपोजिट सरफेस एंड द नॉन वर्बल डाइस। इसमें हर तरह का क्वेश्चन जो भी आपका आ सकता है वो क्लियर हो गया है और इसके अंदर वो आ भी चुका है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर बचा हो। तो अब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से और डाइस के टॉपिक को क्या कर लेना है, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।